welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, this is my lecture 2 on jurisprudence. So guys, if you have not watched my previous lecture yet, please go and watch that lecture also, because in that video we have discussed an introduction to what jurisprudence actually means. We have discussed what this word actually means, and guys, in this lecture we'll be discussing different definitions and meanings of jurisprudence given by eminent jurists. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. Guys, in this particular lecture, we'll be discussing definitions given by three very eminent jurists, namely Professor Gray, Salmond and Julius Stone. Although guys, there are a lot many very important eminent jurists, लेकिन उनकी जो definitions हैं jurisprudence की, वो हम discuss करेंगे जब हम उनके respective schools of jurisprudence को discuss करेंगे. For example guys, Austin, Holland and H.L.A. Hart, इन तीनों के definitions of jurisprudence को discuss करेंगे while we'll be discussing analytical school of jurisprudence. Similar is the case with Roscoe Pound. Roscoe Pound भी एक eminent jurist थे, उनकी भी जो definition है jurisprudence की वो हम discuss करेंगे when we'll be discussing sociological school of jurisprudence. There are 4 important schools of jurisprudence. इस lecture के बाद we'll be discussing different schools of jurisprudence. तो उन eminent jurists की definition वहाँ पे cover होती रहेंगी. But in this lecture we'll be discussing definitions given by Professor Gray, Salmond and Julius Stone, which in turn will form your basis for the understanding of those schools also. So guys, as always, सबसे पहले we'll be discussing definition given by Professor Gray. But guys, इनकी definitions को समझने के लिए particularly Professor Gray and Salmond ने जो definition दी है jurisprudence की, उसको समझने के लिए आपको इन jurists के mindset को समझना होगा, जहाँ पे they have termed jurisprudence as a science. अब आपको इस चीज़ को समझना है कि particularly Professor Gray and Salmond ने jurisprudence को science से correlate किया और science से equivalent रखा. किस तरीके से वो ये बोलते हैं कि हम jurists हैं और हमारा एक juristic view है. Juristic view मतलब क्या होता है? किसी भी जज का जो व्यू होता है आप उसको juristic view बोलते हो. It means guys that view in a way or the other is a man-made view. वो man-made view है. तो वो बोलते हैं कि यानी कि जो jurisprudence है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है जूरिस, दैट इज लॉ, वो एक ज्यूरिस्टिक लॉ है, यानी कि वो एक मैन मेड लॉ है जिसको जजेस ने या लॉयर्स ने बनाया है विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट मीन्स इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मोरल्स, विद कस्टम्स, एथिक्स एंड डिविनिटी. स्पिरिचुअलिटी से ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोई लेना देना नहीं है और ये मैन मेड लॉज है. इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को ज्यूरिस्टिक लॉ कहा गया है बाय प्रोफेसर ग्रे एंड सालमंड. इन्होंने इसको साइंस से रिलेट किया है. इट मीन्स गाइज उनके अकॉर्डिंग jurisprudence is far away from and is not related to customary laws. It is unaffected by customary laws, fantasies, societal ethos and morals. इन चीज़ों से दूर रखा है उन्होंने jurisprudence को. It means guys, दो तरीके के laws होते हैं, एक होते हैं आपके customary laws और एक होते हैं हमारे juristic laws. Customary laws are those which are governed by a person's customs. कहीं ना कहीं उसमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है, रिलीजन भी होता है, मोरल्स एंड एथिक्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन गाइज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे एंड सालमंड, उनकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है इज अ साइंस. इट मीन्स इट इज फार अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज क्वाइट मैन मेड. उनके अकॉर्डिंग जो ज्यूरिस्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस्ट है विच अल्टीमेटली फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ ज्यूरिस्टिक लॉ. इट मीन्स इट इज अ मैन मेड लॉ. और बनाया किसने है? जजेस ने बनाया है, लॉयर्स ने बनाया है विद द पैसेज ऑफ टाइम. और क्यों बनाया है और इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि दे वांट टू रेगुलेट एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट. अब गाइस, आपका एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट क्या है? उस एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग बाय द रोड साइड और अगर ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो, आपका जो एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट है वो सही नहीं होगा. आपके एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को, इंटरनल इज समथिंग गाइस विच इज रिलेटेड टू योर कॉन्शियंस. कॉन्शियंस पे फोकस नहीं किया गया है सैलमंड और प्रोफेसर ग्रे के द्वारा. उन्होंने क्या किया? दे बेसिकली फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट. अगर आप इफ यू गोइंग बाय द रोड साइड और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होंगे तो आपका जो एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट है वो गलत होगा. इट मीन्स वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. कहने का मतलब है कि एक इंसान का इंटरनल ह्यूमन कंडक्ट क्या है, उस चीज़ को फोकस नहीं किया
प्रोफेसर ग्रे और साल्मन ने, क्योंकि वो चीज़ क्या है, कॉन्शियस पे बेस्ड है, आपके मोरल्स एंड एथिक्स पे बेस्ड है, और वो बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फार फार अवे एंड इट एक्सक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, कस्टमरी लॉज, कस्टम्स, मोरल्स, फैंटेसीज, एथिक्स, इन चीज़ों से वो दूर है। इट मीन्स वो बोलते हैं कि जो रूल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में हैं वो क्या है, एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एंड जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाए गए हैं। इट मीन्स इन द नटशेल गाइज, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हम ये कहेंगे कि प्रोफेसर ग्रे एंड साल्मन का जो बेसिक क्रक्स है ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दैट कि इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक ज्यूरिस्टिक लॉ कहा है और इसको कोरिलेट किया है विद द मैन मेड लॉज, इसको एक्सक्लूड किया है फ्रॉम कस्टमरी लॉज एंड फैंटेसीज, सोशल एथिक्स एंड मोरल्स। मोरोवर इन्होंने क्या कहा कि ये एक साइंस है, इन्होंने इसको कोरिलेट किया विद साइंस, और वही चीज़ आपको इनकी डेफिनेशंस में भी देखने को मिलेगी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस। अब प्रोफेसर ग्रे की अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोफेसर ग्रे ने क्लियरली कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। इट मीन्स, अब आप देखो उसको साइंस से कोरिलेट किया है, क्योंकि गाइज इन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज समथिंग विच इज फार फार अवे फ्रॉम जजमेंट्स एंड वैल्यूज, वैल्यू जजमेंट्स से बिल्कुल परे है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट इज समथिंग विच इज फॉर्मल, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो कंटेंट है विच इज ज्यूरिस, वो बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही रैशनल है, बहुत ही लॉजिकल है। अब कोई भी चीज़ जब एम्पेरिकल होती है, लॉजिकल होती है, रैशनल होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस गाइज, वो चीज़ क्या होती है, इट इज केम टू बी रेकन्ड एज अ साइंस, इट केम नियरर टू बी रेकन्ड एज अ साइंस ओनली बिकॉज उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में साइंस के फीचर्स होते हैं। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो ज्यूरिस है वो बहुत ही फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल नहीं है, वो लॉजिकल है, हर एक चीज़ विद अ रैशनल, यानी कि रैशनल मतलब हर एक चीज़ विद अ लॉजिक है। मोरोवर गाइज इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगर कोई भी लॉ ऐसा होगा जो जजेस को जस्टिस एडमिनिस्टर करने में हेल्प नहीं करेगा, ये एक इंसान के, एक ह्यूमन के एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट नहीं करेगा, उस लॉ को हम स्ट्रक डाउन कर देंगे, क्योंकि लॉज अल्टीमेटली मैन मेड लॉज है, यानी कि ज्यूरिस्टिक लॉ है। इट मीन्स वो जो लॉज हैं इनके अकॉर्डिंग, प्रोफेसर ग्रे के अकॉर्डिंग, वो लॉज क्या हुए, मैन मेड लॉज हुए। मैन मेड लॉज का मतलब क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। हम लॉज को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो लॉ हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ फिट नहीं बैठेगा उस लॉ को हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कस्टम्स की हमारा कस्टम है, इट इज़ अ यूजेज और ये इसी तरीके से होता आ रहा है, उस चीज़ को इन्होंने फोकस नहीं किया। आई होप गाइस आपको समझ आए कि प्रोफेसर ग्रे ने क्यों कहा कि इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉ। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब हम डिस्कस करेंगे गाइस, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। वहाँ पे जितने भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स हैं, जितने भी प्रोपोनेंट्स आपको दिखेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, मोर ऑफन देन नॉट सभी ने फोकस किस चीज़ पे किया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस से कोरिलेट किया है। साइंस से कोरिलेट करने का मतलब क्या है कि वो सभी, उन्होंने कहा कि इट इज़ अवे फ्रॉम मोरालिटी, वो मोरालिटी से दूर है, कस्टमरी लॉज को वो एक्सक्लूड करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का वेरी सब्जेक्ट मैटर। अब प्रोफेसर ग्रे की पूरी डेफिनेशन ये थी कि उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया एज अ साइंस ऑफ लॉ। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ चुका है गाइस। It is a science of law and it is a systematic arrangement of rules which are followed by the courts. अब गाइस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स है विच आर फॉलोड डेफिनेटली बाय द कोर्ट्स। जब कोर्ट्स बनाएंगे तो वो फॉलो भी करेंगे। और रूल्स कौन से रूल्स होंगे, जो मैन मेड रूल्स है, उन्हीं रूल्स पे इन्होंने फोकस किया है, विच इन टर्न आर मैन मेड एंड हेल्प रेगुलेट एंड हेल्प एडमिनिस्टर जस्टिस बाय रेगुलेटिंग एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट। आई होप गाइस आपको प्रोफेसर ग्रे की डेफिनेशन समझ आ चुकी है, जहाँ पे वी फोकस ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस। उसी तरीके से गाइस मूविंग ऑन विद द डेफिनेशन गिवन बाय साल्मन ने भी क्या कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है, लेकिन उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को थोड़ा नैरो डाउन कर दिया, क्योंकि गाइज साल्मन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस, लेकिन इट इज अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। इट मीन्स गाइज उन्होंने क्या कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस है, यानी कि वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर ग्रे का, उसी को हम लेके चलेंगे और हम ये कहेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सक्लूड्स कस्टमरी लॉज एंड मोरालिटी। लेकिन एट द सेम टाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो हम लॉ को स्टडी करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ज्यूरिस, विच मीन्स उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, लॉ। उन्होंने इसी लॉ को थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि इट इज़ अ सिविल लॉ। इट मीन्स ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस, लेकिन इट इज़ अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। इट मीन्स ही बेसिकली नैरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस टू सिविल लॉ इटसेल्फ। सिविल लॉ का मतलब होता है लॉज ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के जो लॉज होते हैं उसको सिविल लॉ का नाम दिया गया प्रोफेसर साल्मन के द्वारा। अब गाइस किसी भी स्टेट का जो लॉ होगा
वो डेफिनेटली अगेन मैन मेड होगा, वो ज्यूरिस्टिक लॉ होगा, लेकिन ही फोकस एंड एम्फेसाइज्ड मोर ऑन सिविल लॉ than any other form of law. It means he narrowed the concept of jurisprudence to civil law, which is the law of the state, and he focused or emphasized or particular species and branch of law. उन्होंने एक particular species ये एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ पे फोकस किया विच इज़ सिविल लॉ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोफेसर जो हमारे सालमन है, इन्होंने थोड़ा नैरो डाउन कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को। अब गाइस सिविल लॉ का मतलब आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बेसिक्स वही है कि सालमन के अकॉर्डिंग भी ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ज्यूरिस्टिक लॉ है विच इज़ अ लॉ ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का लॉ है, यानी कि वो सिविल लॉ विच इज़ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज और ब्रांच ऑफ लॉ विच इज़ सिविल लॉ। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पर्टिकुलर ब्रांच पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम उसको इन डिटेल रीड करेंगे। आई टोल्ड यू, अगर हम पर्टिकुलर स्पीशीज की या पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ की बात करते हैं, दैट इज सिविल लॉ की बात करते हैं, वहाँ पे जो बेसिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो वही रहेगा कि यहाँ पे भी सालमन बोलते कि विल बी स्टडिंग जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच दैट सिविल लॉ इज बेस्ड। आई टोल्ड यू कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रूडेंस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज इज जनरल प्रिंसिपल्स, fundamental or basic principles upon which actual rules of law are based, and we do not go into the study of concrete statutes। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही क्लियर किया था, वो चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। दीज आर सर्टन बेसिक्स जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हैं और ये ऑल ओवर चलेंगे। और वो बेसिक क्या है कि यहाँ पे ऑल्दो हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ को टारगेट किया, सालमन ने फोकस किया विच इज़ सिविल लॉ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिविल लॉ को इन ग्रेटर डिटेल स्टडी करने लगेंगे। वो अपने आप में कॉन्क्रीट स्टैट्यूट बन जाएगा गाइस, एंड वी वोंट स्टडी इट ऑल इन डिटेल एंड डेप्थ। उसमें भी हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे अपॉन विच दैट सिविल लॉ इज बेस्ड। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच अ पर्टिकुलर ब्रांच और स्पीशीज ऑफ लॉ इज बेस्ड। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो यही सालमन की डेफिनेशन थी जहाँ पे उन्होंने फोकस किया साइंस पे, साइंस ऑफ लॉ पे एंड सिविल लॉ पे, इन दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दी है सालमन ने, उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस 3 तरीके की होती है। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू ग्रैब इन डिटेल नॉलेज अबाउट एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब गाइस उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशंस बताई ज्यूरिस्प्रूडेंस की। सबसे पहली होती है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। बिफोर आई टेल यू उन्होंने क्या कहा, आई विल टेल यू कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विच इज क्वाइट सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट को उन्होंने नाम दे दिया हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रेजेंट को उन्होंने कहा इट इज एक्सपोजिटरियल और एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड फ्यूचर को उन्होंने कहा सेंसोरियल और इवैल्यूएटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई होप गाइस यू हैव जॉट दीज थिंग्स डाउन। यहाँ पे उन्होंने 3 क्लासिफिकेशंस करी। ईजी लैंग्वेज में उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन 3 टाइप्स में ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया, लेकिन अपनी वर्डिंग में उन्होंने कहा कि एक है आपकी जो पास्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया। प्रेजेंट को उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ एनालिटिकल और एक्सपोजिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड फ्यूचर को उन्होंने कहा कि इट इज़ इवैल्यूएटिव और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस चीज़ का नाम दिया। अब गाइस जो पास्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो स्टडी ऑफ लॉ है या नॉलेज ऑफ लॉ है, लेकिन वो क्या है, हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ लॉ। इट मीन्स लीगल हिस्ट्री, इट इज़ नथिंग बट लीगल हिस्ट्री। अब गाइस अगर आपको लीगल हिस्ट्री नहीं पता क्या होती है, एग्जाम्पल दे देते तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, लीगल हिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, हम लॉ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी चार्टर एक्ट्स, ब्रिटिशर्स के टाइम के, ब्रिटिश इंडिया के टाइम्स के जो चार्टर एक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, तो ये सारे एक्ट्स विच इन टर्न आर समवेयर रिलेटेड टू लॉज, उसको हम लीगल हिस्ट्री का नाम देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम लीगल हिस्ट्री को पढ़ते हैं विच इज़ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ लॉ की हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं विच इज़ लीगल हिस्ट्री। उसके बाद हम फोकस करते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे या फिर एक्सपोजिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। गाइस इसका मतलब होता है लॉ एज इट इज़। लॉ एज इट इज़ मतलब आज के टाइम पे प्रेजेंटली करंटली लॉ क्या है उस चीज़ को पढ़ना इज एक्सपोजिटरियल और एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ लॉ। ये जो आपको वर्ड मैंने समझाया साइंस ऑफ लॉ, इसी को हम साइंस ऑफ लॉ भी कहते हैं, यानी कि जो आज के टाइम पे प्रेजेंटली लॉज आर इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को पढ़ना, दैट टू उनकी ओवरलाइंग सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स को स्टडी करना, नॉट द डिटेल कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स, उसको आप कहोगे एनालिटिकल और एक्सपोजिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड देन मूविंग ऑन टू फ्यूचर ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको उन्होंने नाम दिया सेंसोरियल और इवैल्यूएटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसका मतलब है लॉ एज इट ऑट टू बी।
ऑट टू बी का मतलब होता है शुड बी, यानी कि जो लॉ होना चाहिए उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। अब आपको आई होप इस तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी है। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस एक साइड पे निकल गए विच इज़ लीगल हिस्ट्री, बट उसके बाद वी टॉक अबाउट एक्सपोजिटोरियल और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सेंसोरल और इवैल्यूएटिव जूरिस्प्रूडेंस। एक है आपकी प्रेजेंट जूरिस्प्रूडेंस और दूसरी है आपकी फ्यूचर जूरिस्प्रूडेंस। अब बहुत सारे जूरिस्ट्स ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट जूरिस्प्रूडेंस है वो है लॉ एज इट इज़, आज के टाइम पे जिस तरीके से करंटली लॉ है दैट इज लॉ एज इट इज, और उसी को हम साइंस ऑफ लॉ बोलते हैं। लेकिन लॉ एज इट ऑट टू बी, लॉ क्या होना चाहिए उसको आप बोलते हो वो फ्यूचर जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि वो आज के टाइम पे अभी नहीं है एज इट ऑट टू बी, शायद इन नियर फ्यूचर वो आ जाए, उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड नॉट ऑफ लॉ। दिस इज साइंस ऑफ लॉ प्रेजेंट में एंड साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इज फ्यूचर जूरिस्प्रूडेंस, जिसको सैलमन ने अपनी अलग वर्डिंग दे दी, उन्होंने कहा इट इज सेंसोरल और इवैल्यूएटिव जूरिस्प्रूडेंस। आई होप गाइस आपको समझ आया। एंड बहुत सारे जूरिस्ट्स आर ऑफ एन ओपिनियन कि जो लॉ एज इट इज है, यानी कि जो आज के टाइम पे लॉ है, दैट इज द ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लॉ क्या था या क्या होना चाहिए, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर। जूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ यही स्टडी करेंगे लॉ एज इट इज, इट मीन्स हम साइंस ऑफ लॉ को स्टडी करेंगे एंड नॉट एज इट ऑट टू बी और व्हाट इट वाज। आज से पहले लॉ क्या था या आज के बाद लॉ क्या होगा वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। उनको लगता है कि लॉ एज इट इज़ की ओवरलेइंग प्रिंसिपल्स को पढ़ना ही इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो हर एक एमिनेंट जूरिस्ट की अपनी थिंकिंग थी, अपना एक कॉल था कि उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से देखा। सो ये सैलमन की क्लासिफिकेशन थी विच इज़ समवेयर क्वाइट सिमिलर टू दैट गिवन बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन को हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। सो दिस विल फॉर्म योर basis for the understanding of his theory also. उसके बाद गाइज मूविंग ऑन टू द लास्ट डेफिनेशन गिवन बाय जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज टर्म्ड एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन कहा जूलियस स्टोन ने। गाइज इसका मतलब क्या है कि जूलियस स्टोन का बेसिक क्रक्स ये था कि आप लॉ को यानी कि जूरिस को एक आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, यू हैव गॉट टू स्टडी इट इंटेग्रेटिवली। इंटेग्रेटिवली का मतलब होता है कि विद अदर डिसिप्लिन्स आपको उसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि गाइज एक लॉ हमेशा कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सोसाइटी पे। लॉज आर एप्लीकेबल ऑन द पीपल एंड पीपल कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। तो अगर एक इंसान सोसाइटी में रहता है तो उस लॉ को पढ़ने के लिए आपको बाकी की सोसाइटल प्रॉब्लम्स को भी देखना होगा, विच में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, विच में भी सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इट मीन्स वो कहते हैं कि जब एक लॉ सोसाइटी पे एप्लीकेबल होता है देन दैट लॉ कैन नॉट बी रेड आइसोलेटिवली, it has to be read integratively. And integratively with what? Integratively with other disciplines which in turn have a bearing and impact on society. बहुत सारी societal problems होंगी, उनको देखते हुए पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें अपने लॉज को मोल्ड करना है ताकि वो लॉज क्या हो, डायनामिक हो एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल हो। अगर एक लॉ को आप लोगों की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाओगे गाइज, देन दोज लॉज विल बी यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा, ही बेसिकली फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन्स को एकजुट करके आप इंटेग्रेटिवली जब पढ़ोगे तो उससे आपको जूरिस्प्रूडेंस दिखेगा वहाँ पे। दैट इज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ लॉ जूलियस स्टोन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स गाइज एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या है कि जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, द वंस हु आर इन्वॉल्व इन दिस लीगल फील्ड, those people interpret laws in the light, those people should examine and interpret laws in the light of the knowledge derived from other disciplines, and they should not interpret laws isolatively, integratively उन्हें study करना होगा। और integratively study करने के बाद जो निकल के आएगा वो बहुत ही beautiful law होगा जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा और उनके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय जूलियस स्टोन जो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि वो एक्स्ट्रावर्जन करते हैं। एक लॉ वही नहीं होता जो बेयर एक्ट्स में लिखा है, जो एक एक्ट में लिखा दैट इज नॉट द लॉ इटसेल्फ। हर एक जगह पे अलग अलग लोगों की सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस को देखते हुए आपको उस रीजन में लॉज को बनाना है। इट मीन्स आपको उसको खुद से इम्प्रोवाइज करना होगा, खुद से एग्जामिन करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा इन द लाइट ऑफ द नॉलेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, और उसके बाद आपको एक लॉ निकालना होगा। सो दिस इज इट। इसीलिए गाइज लॉज आर एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग। और लॉ कोई पर्टिकुलर लॉ इन द सेंस कि कई बार बहुत प्लेसेस पे लॉज डिफरेंट होते हैं क्योंकि वहाँ की सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट है। तो लॉ हैज़ टू केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया। आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस तो यही है विच इज़ अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। लॉयर इन द सेंस जजेस और लॉयर्स और एनी पर्सन इन्वॉल्व इन दिस लीगल फील्ड जिनके पास पावर है ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग लॉज, एंड दे शुड एग्जामिन इट एंड इंटरप्रेट इट इन दिस वे ओनली
ताकि जो लॉज बाहर निकल के वो बहुत अच्छे हों एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे फोकस करें. सो आई होप गाइज आपको बेसिक डेफिनेशंस जूरिस्प्रूडेंस की क्लियर हो चुकी हैं. अ लॉट मेनी डेफिनेशंस आर स्टिल लेफ्ट गाइज, बट विल बी डिस्कसिंग देम slowly and steadily when we'll be discussing their respective schools of jurisprudence. So till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.